गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आवाज़ आ रहा है सबको? रेज योर हैंड। ओके। बोर्ड दिखाई दे रहा है? ओके। सो in the last class we saw uh, the rise of Magadhan Empire, how they rose from the 16 जनपदास। तो 16 जनपदास जो था उसमें से there was a fight for supremacy, and four were uh, four became the supreme power. They were Magadha, Kosala, Vatsa and Avanti. And among those four, the Magadha Empire came to prominence after some period, and founder of Magadha was Jarasandha, followed by his son Bidrihartha. But the real expansion happens in the Harankya dynasty. तो Harankya dynasty में there were many important rulers like Bimbisara, Ajatsatru, and after that we saw Sisunaga dynasty. Sisunaga dynasty, he kills the last Harankya ruler, that was Udain. Udain was a weak ruler, and Nagadaksak. Udain's son was Nagadaksak, and Nagadaksak is killed by Sisunaga, and Sisunaga dynasty is founded by Sisunaga. Then his predecessor Kala Asoka. Then comes the Nanda dynasty. The Nanda dynasty further extends the Magadha empire, and after the last important Magadhan Nanda dynasty ruler was Dhananda, and Dhananda is overthrown by Chandragupta Maurya, and he is helped by his minister, who is very famous. His name is Kautilya or Chanakya. And after that, in the time period of this Dhananda, there was an attack from the Persian side, that is present day Iranian side, but it was called Persian at that time, Persia. सो क्या होता है यहाँ पे, जो पर्शिया है, पर्शिया पहले एक यहाँ पे भी बहुत सारा किंगडम्स था, बट एक पावरफुल रूलर का अंदर जो पूरा पर्शिया का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा उसका अंदर आ जाता है, एंड ही रोज इनटू पावर. दैट पर्सन वाज द साइरस. हिज नेम वाज साइरस. Okay, now let's see the conquest or the invasion by the Iranian or Persian or Iranian invasion. As I've told already, the eastern India was ruled by Magadhan, but the northwest India, it was indirectly controlled by the Magadhans, but there were many petty rulers in this area, in this region. तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा किंगडम्स था, एंड दे यूज टू फाइट विथ ईच अदर. एंड व्हेन दिस पावरफुल रूलर कम्स in the Persian area, Persian region, the Armenian ruler
Armenian ruler. Armenia was a region there in the Middle East, now the present day Middle East. जो बेबीलोन वाला पूरा एरिया था, उस समय में बेबीलोन था, तो मोस्ट ऑफ द किंगडम विच वाज बेबीलोन, इट इज़ नाउ अंडर द सी. तो वहाँ पे सी का एक्सपेडिशंस भी होता है. तो जो टाउन लोग था, पहले का सिटीज़ था, वो अभी अंडर द सी है, जो बेबीलोन का है. द आर्केमेनियन ruler which rose into power was Cyrus or Cyrus. Cyrus was the first foreign invader who penetrated India. Not the whole India, but the northwestern part. तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, वो अभी जो अफगानिस्तान का जो पार्ट है, that was also considered as India at that time. ठीक है. तो वो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाला पार्ट, वो उसको हम लोग इंडिया ही मानता है इन दिस पीरियड. तो वो वाला पार्ट में इसने इन्वेड किया. दैट इज वाई ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर. ओके. देन इसका बेटा आता है डेरियस. डेरियस एक्सटेंड्स फर्दर. ही कम्स टू द वेस्ट ऑफ इंडस एंड द पंजाब एंड सिंध एरिया. ओके. द पंजाब एंड सिंध एरिया. His son, or the successor, you can say successor is more appropriate. His successor that is Darius, he penetrates the or he captures, you can say, or occupy the Punjab Sindh region. ये सब एरिया ये इसका अंदर में कब्जा कर लेता है. एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इट वॉज अ वेरी फर्टाइल लैंड. दिस इंडस वैली वॉज अ वेरी फर्टाइल लैंड. और उसने अपना जो किंगडम है, होल किंगडम को एक प्रोविंसेस में बांट के रखा था. एंड ऑल प्रोविंसेस वेयर all provinces used to send the taxes to the emperor. तो उस समय में जितना प्रोविंसेस है उसका जो 1/3 रेवेन्यू है, 1/3 रेवेन्यू it used to come from this area, पंजाब सिंध रीजन. ठीक है. तो जो वो मेनी प्रोविंसेस, उसका प्रोविंसेस को जो डेरियस का प्रोविंसेस है, इट वाज कॉल्ड सेट्रेपिस. एंड इसका जितना 28, आई थिंक 28 वाज द 28 वाज इन नंबर हिज प्रोविंसेस. तो ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पार्ट है, इट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फर्टाइल and 1/3 of the revenue of his whole provinces used to come from this area. And many of the Indians were enrolled in his army, in Iranian army. Okay, so Cyrus was the first emperor
who invaded India, and then Darius, his son, he extended further from this area of Cyrus. और उसका बाद आता है द Xerxes, the God King. You might have seen the movie 300. 300 में जो पर्शियन जिसको दिखाता है, he has a whole kind of rings and golds in his body. He is considered to be the God King. तो इसको जो जैक्सेस है इसको गॉड किंग बोलता था. इसको 300 मूवी में आपको दिखाई देगा. 300 मूवी अगर आपने देखा हो तो जैक्सेस भी इसमें आके फिर इंडिया में इसको जो इसका जो प्रीडेसेसर्स ने जो कब्जा किया था, ही एक्सटेंड सम मोर. ठीक है. सो इट वाज Cyrus, Darius and Xerxes. The result of this was that जो Iranian Persian जो आया है, इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ऑफ कॉन्टेक्ट was there was a boost of Indo-Iranian trade, and we can see the use of Kharosthi script. Use of Kharosthi script. Use of Kharosthi script by the Indian rulers also. तो जो अशोका का inscription है in the northwest part, okay, Ashoka, even though we haven't studied till now, it is in the later Magadhan kingdom, जो मौर्य किंगडम होगा, मौर्यन एम्पायर, वहाँ पे अशोका आएगा. तो जो अशोका है, अशोका का जो नॉर्थ वेस्ट तरफ में इसका जो इंस्क्रिप्शन यूज़ होता है, नॉर्थ वेस्ट तरफ में जो उसका जैसे कि उसका पिलर्स उलर्स है, उसमें हम लोग को ये खारोस्ती स्क्रिप्ट को दिखाई देता है. नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. एंड फ्रॉम द इससे क्या हुआ, जो अभी ग्रीक्स आएगा, ईरानियन का बाद एलेक्जेंडर आता है इंडिया में. तो जो ग्रीक्स आएगा, ग्रीक्स को भी एक रास्ता मिल गया. सिंस ईरानियंस एंड द पर्शियंस केम फर्स्ट, दे गॉट द दे न्यू द वे टू कम टू इंडिया. तो वो लोग के लिए और आसान हो गया इंडिया का अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, टू कैप्चर द इंडियन नॉर्थ वेस्ट पार्ट. तो ये और इजी हो गया जो एलेक्जेंडर लोग के लिए. द ग्रीक एलेक्जेंडर लोग क्या था? ग्रीक था ये लोग. from Persians, Greek knew about India, and then we will see now the invasion of the Greek. Okay, ये कब हो रहा है? ये जब हो रहा है ये लेटर पार्ट ऑफ 600 BC, later part of 600 BC to 500.
यहाँ पे ये सब जो पर्शियन इन्वेजन है ये इस समय में हो रहा है। नाउ इसका बाद आफ्टर द गेम ऑफ 100 years एंड सो यहाँ पे फिर से इन्वेजन होता है ऑफ द ग्रीक्स, दैट इज ग्रीक, और वी कैन से मैसिडोनियन। मैसिडोनियन इन्वेजन। तो जो ग्रीस था ये एक पूरा एक बड़ा किंगडम था, लेकिन इसमें बहुत छोटा किंगडम बन के ये एमलगेट होके एक पूरा किंगडम बनता था। इट वाज लाइक दैट। तो जो ग्रीस था, ग्रीस का जो एलेक्जेंडर था, एलेक्जेंडर वाज द किंग ऑफ मैसिडोनिया। ओके, he was the king of Macedonia. That is why it is also called Macedonian invasion, although it can be said that it is a Greek invasion, और Greek क्या है, पूरा एक बड़ा पार्ट है, लेकिन मैसिडोनिया वो ग्रीक का एक वन ऑफ द किंगडम है। तो ऐसा समझ सकता है, ग्रीक सेटअप वाज लाइक दैट। तो ग्रीस में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो वहाँ पे भी ये ओलिगार्की सिस्टम चलता है, दैट इज़ द रिपब्लिक सिस्टम, जहाँ किंग्स को चुना जाता है। तो दैट सिस्टम वाज आल्सो प्रिवेल्ड इन द ग्रीस। तो इन द फोर्थ सेंचुरी, और यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, 400 BC में ग्रीस और ये जो ईरानियन है इसका अंदर फाइट होता है। तो जो 300 मूवी का सेटअप है, इट वाज द सेटअप ऑफ द डेथ पीरियड। तो जो ज़ेर्क्सेस है, ज़ेर्क्सेस वांटेड टू इन्वेड फर्दर इन द ग्रीक किंगडम, एंड वहाँ से क्या होता है, फर्स्ट जो 300 सोल्जर्स आता है, दे वर फर्स्ट टू डिफेंड दिस huge army of Xerxes, and this 300 army gave the inspiration for all the Greece to come forward and fight this bully, that is the Xerxes. He called himself the God King. तो ये पर्सिया का, उसका बाद सब वहाँ पे एक साथ आके जो ग्रीस का जितना पार्ट से किंगडम से, वो लोग सब आके अटैक करके ये जीत जाता है द पर्शियन किंग को। ठीक है, उसका बाद ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया को जो पहले ये था ईरानियंस का साथ था, जो पर्शियंस का साथ था, अभी क्या हो गया, इट वाज अंडर एलेक्जेंडर। ठीक है, एलेक्जेंडर now conquered the पर्शिया, और पर्शिया को कन्क्वायर करने के बाद उसका जो एरिया है उसको कन्क्वायर करने के बाद, देन ही केम टू नो अबाउट इंडिया ऑल्सो। ही हर्ड दैट इंडिया इज अ फेब्यूलस लैंड, दैट वहाँ पे बहुत सारा धन है, वेल्थ है, और there was a popular belief back then that जो अर्थ है, अर्थ जो फ्लैट है, ठीक है, अर्थ जो फ्लैट है, और जो इंडिया है, इंडिया इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो ईस्ट का सबसे एंड में जो है दैट इज इंडिया। तो वह उस समय में अर्थ को फ्लैट है सोचता था, जो इंडिया है वो सबसे एंड में है। दैट वाज दिस ऑल्सो क्रिएटेड ए curiousness in Alexander's mind to conquer India। और वहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल था एट द टाइम, हिज नेम वाज हेरोडोटस। He is also considered as the father of history।
तो हेरोडोटस का जो लिखा हुआ जो किताब था, ये वहाँ पे भी बहुत सारा इंडिया का बारे में लिखा हुआ था। तो ये सब देखते हुए जो एलेक्जेंडर है, ये सिंस ये पूरा दुनिया को जीतना चाहता था, उसका मिशन था कि पूरा दुनिया उसका किंगडम का अंदर आना चाहिए। तो ही मूव टुवर्ड्स इंडिया, और जो पेटी किंगडम्स है, पेटी किंगडम्स लाइक अम्भी, तक्षशिला, ये लोग जो एलेक्जेंडर का जो ये है ग्रेटनेस है उसका बारे में सुन चुका था। डेट इज वाई दे गेव अप विदाउट फाइटिंग। ठीक है, दे गेव अप their kingdom without fighting, without taking arms or fighting, you can say anything। तो वहाँ पे ये लोग जो अम्बी था और तक्षशिला था, ये लोग अपना हथियार डाल लिया, बट देयर वॉज अ ब्रेव रूलर बाय द नेम ऑफ पोरस। पोरस जो फाइट करता है एलेक्जेंडर को इन द बैटल ऑफ हाइड्रोपास। हाइड्रोपास में ये उसको फाइट करता है, इवन दो ये हार जाता है, पोरस इज डिफीटेड, बट एलेक्जेंडर इज उसको एलेक्जेंडर को इसका जो बहादुरी है, इसका जो करेज है, उससे वो इम्प्रेस्ड होके उसका किंगडम को वापस कर देता है। हिज किंगडम इज रेस्टोर्ड बाय एलेक्जेंडर। एंड एलेक्जेंडर इज नोन एज सिकंदर इन हिंदी। तो सिकंदर इसका हिंदी नाम है एलेक्जेंडर का। एंड वन मोर थिंग इज दैट जो ये एलेक्जेंडर एंड जो पर्शियंस आए, ये कहाँ से आया? फ्रॉम द खाइबर पास। खाइबर पास that is in Hindu Kush mountain, हिंदू कुश माउंटेन्स, यहाँ पे खाइबर पास है, और खाइबर पास से ही ये आया। तो ये जो पाकिस्तान का जो नॉर्थ का पार्ट है, प्लस जो अफगानिस्तान का जो माउंटेनियस एरिया है, वो है पूरा वो जो रीजन जो डेट इज हिंदू कुश माउंटेन्स। देन यहाँ पे बैटल ऑफ हाइड्रोपास होने का बाद जो ये था उसका जो एलेक्जेंडर का जो आर्मी था, आर्मी लोग को सिंस दे वर फाइटिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, सिंस लाइक 10 years और सो, तो वो लोग पूरा थका हारा हो गया। दे वर होम सिक, दे वांटेड टू गो होम। और उसका जो ये था आर्मीज था, यहाँ का जो क्लाइमेटिक रीजन डेट वॉज वेरी हॉट, नॉट लाइक डेट ऑफ द मेडिटेरियन रीजन। ये बहुत गर्म था और वो लोग को ये क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा था, एंड मेनी ऑफ देम गॉट सिक ऑल्सो। सो वो लोग क्या करता है, यहाँ से पार करने का बाद लास्ट में एक नदी आता है, डेट इज बीस। यू नो इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। तो बीस इज नॉट क्रॉस्ड बाय दिस आर्मी बिकॉज दे वेर टायर्ड ऑफ फाइटिंग सो मेनी बैटल्स। तो उसका बाद से जो नॉर्थ वेस्ट का जो टेरिटोरी है इंडिया का, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो टेरिटोरी जो कब्जा किया था बाय दिस एलेक्जेंडर, वहाँ पे वो एक गवर्नर बना रहता है सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर, एंड ही स्टेज फॉर 19 months in India,
and he goes back to his kingdom, that is Macedonia, and dies in the age of 33 years. He died very young. तो ये था पूरा पर्शियन एंड ग्रीक का इन्वेजन का कहानी, ठीक है. तो व्हाट इफेक्ट डिड इट क्रिएटेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन मेनलैंड. तो इसका इफेक्ट था इफेक्ट्स ऑफ Alexander's invasion. यहाँ भी क्या हो गया, देयर वॉज अ रूट फॉर डायरेक्ट कंटेक्ट with Europe and India. Means the trade route, it can be used as the trade route. और जो ग्रीक था, ग्रीक since they were already advanced in the field of architecture, astronomy, sculpture, that can be seen in the Indian parts in the later period, like that of the Gandhara School of Art. तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या देखता है आप, यू माइट हैव सीन ऑल द ग्रीक स्कल्पचर्स, देखा होगा बहुत सुंदर सुंदर. जो अभी एक हैंडसम लड़का को क्या बोलता है, ग्रीक फिजिक ऐसा बोलता है ना. ऋतिक रोशन इस टर्म एज ग्रीक गॉड. तो वो टर्म कहाँ से आ रहा है, बिकॉज हिज फिजिक इज लाइक दैट ऑफ द ग्रीक गॉड that are created through these sculptures. आपने देखा होगा डेविड एंड गुलायत का एक द डेविड, वो एक ये उसका एक स्कल्पचर है. तो वहाँ पे पूरा एक जो इंसान होता है, इट इज इन द परफेक्ट कंडीशन. उसका जो मसल्स होता है, मसल्स भी एवरी मसल को वो लोग दिखाता है, एवरी हेयर को वो लोग स्कल्पचर करता है. दैट इज ऑल मेड ऑफ स्टोन, मार्बल्स. तो उसको इतना सुंदर से बनाता है. that was incorporated in Gandhara School of Arts to create the statues of बुद्धा. तो बुद्धा को पूरा एक ये जो ग्रीक का जो स्कल्पचर था ऐसा टाइप से दिखाया गया. that is the Gandhara School of Art. ओके. तो ग्रीक स्कॉलर्स अपना तरफ से scholars brought the knowledge of coinage, astronomy, architecture, and sculpture. Sculpture, more particularly the Gandhara School of Art. And the kings which lied in the northern part of India. तो ये लोग तो कहाँ पे था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था. तो लेकिन जो मेन एम्पेरर था उस समय में, इट वाज चंद्रगुप्ता मौर्य, ठीक है. तो चंद्रगुप्ता मौर्य उस समय में एम्पेरर बन गया था दैट टाइम. चंद्रगुप्ता मौर्य. और ये चंद्रगुप्ता मौर्य ही took the military
techniques of these Greeks. And one more thing was that जो ये था डॉक्यूमेंटेशन जो करता था ग्रीक लोग, इट वाज वेरी प्रिसाइज द डॉक्यूमेंटेशन. वो लोग जो अपना राजा का जो डॉक्यूमेंटेशन करता था डेट वाज वेरी प्रीशियस, जो हिस्ट्री लिखता था. तो ये चीज़ को भी इंडिया लोग यहाँ से इनकॉर्पोरेट करता है, क्योंकि जो इंडिया का जो हिस्ट्री लिख रहा था टिल दिस टाइम, वो क्या है, बहुत एक फिक्शनल वे में लिखता था. जो किंग्स था उसका बारे में बड़ा चढ़ा के लिखना, और उसका पावर्स का बारे में बड़ा चढ़ा के लिखना, डेट स्टिल हैपेंस. बट जो ग्रीक का एक क्रोनोलॉजी सिस्टम था एंड और ऑथेंटिसिटी जो था वो उसको और इनकॉर्पोरेट किया ये लोग, उसको लिया है फ्रॉम द ग्रीस, द क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री. Okay, so these are some of the effects of this invasion. तो क्या है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रह गया दिस ग्रीस. तो इसका ही अभी क्या है, उसका जो डिफरेंट ये यहाँ पे भी जो अभी चला गया, मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो बस गया, वो लोग फिर से अभी अलग अलग जगह से फिर से आदमी आएगा, वहाँ से मिक्स होगा, वहाँ से भी फिर दूसरा टाइप ऑफ किंगडम्स निकलेगा वहाँ से फिर से. ठीक है, डेट वी विल सी इन द लेटर पीरियड. जो हम लोग जो कुशानास है, साकास है, ये सब बाद में देखेगा, जो इस ये लोग का ही एरिया से आता है फिर. So let's see the Mauryan Empire. Mauryan Empire. जो मगधा था, मगधा का जो लास्ट किंग था, that was धानंदा. और धानंदा को ओवरथ्रो करता है चंद्रगुप्ता मौर्य with the help of कौटिल्य. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था. चंद्रगुप्ता मौर्य देयर इज वन मोर चंद्रगुप्ता दैट वो बाद में ये गुप्ता एज में आएगा, उसको कंफ्यूज नहीं करना है चंद्रगुप्ता मौर्य से. इट इज मौर्य. तो मौर्यन क्लैन यहाँ से आया है. तो ये चंद्रगुप्ता मौर्य का सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर था एक, जिसका नाम था चाणक्य. चाणक्य नीति, ये चाणक्य और कौटिल्य, ये भी एग्जाम में जो अरुणाचल का जितना एग्जाम है उसमें बहुत बार पूछा गया है. और विष्णुगुप्ता भी है इसका नाम. These are all same person. ठीक है, विष्णुगुप्ता. और इसने एक किताब लिखा था अर्थशास्त्र. ये इसको बहुत बार पूछा है, अर्थशास्त्र. Who wrote अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र ये है, अर्थ मतलब द इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमी एंड द मिलिट्री स्ट्रेटेजी. शास्त्र मतलब जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी. तो यहाँ पे जो किंगडम को कैसा चलाना है, दिस इज रिटन इन दिस अर्थशास्त्र. एंड इफ यू गाइस टेक द ऑप्शनल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन यू विल रीड दिस अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र ये पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में भी है, एंड
ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है अर्थशास्त्र. And he is compared with Indian Machiavelli. He is also called as Indian Machiavelli. Machiavelli भी एक फिलोसोफर था जिसने जो स्टेट का कैसे चलाना है उसका बारे में आइडियाज इसने दिया था. सो द ओरिजिन ऑफ मौर्य, इससे ये कहाँ से आया है? जो एरिया जहाँ से मौर्यंस आता है वो जगह पे क्या था, बहुत सारा मोर था, मतलब पीकॉक. इट वाज फुल ऑफ पीकॉक. दैट इज वाई जो मोर से इट वाज कनेक्टेड टू मौर्यस. ठीक है, तो ये लोग मौर्य कैसा बन गया? जो पीकॉक था उसका वो एरिया, सिंस इट इज फुल ऑफ पीकॉक, तो ये लोग का नाम भी मौर्यंस आ गया. द ओरिजिन. और वन मोर थिंग इज दैट जो मौर्यंस है, दे आर कंसिडर्ड दैट दे आर फ्रॉम लो क्लैन. दैट इज वो लोग जो लो क्लैन है, लो कास्ट है, उससे बिलोंग करता है. इट हैपन्स स्टिल नाउ. एक्चुअली जो बिहार में आपने जो मौर्य टाइटल सुना है, तो ये लोग अभी भी ये है लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, मौर्य. तो वन ज्योति मौर्य इज गेटिंग फेमस नाउ इन द सोशल मीडिया एंड ऑल न्यूज़. तो जो अपना पति को छोड़ते हैं ऑफिसर बनने के बाद, तो शी माइट बी अ लो कास्ट. तो जो ये कहाँ से मिलता है ये डाटा को, द इंफॉर्मेशन? ये मुद्रा राक्षसा एंड पुराणास. देखिए ये जो पुराणास है, ये जो विष्णु पुराण, वायु पुराण, ये वाला पुराना नहीं है. दिस पुराण इज द क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ द ऑल मौर्यन किंग्स. ठीक है, इट इज द क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ ऑल मौर्यन किंग्स. दैट इज द पुराना, दिस पुराना. ठीक है, they are considered low clan, which is called as Kulhina. And the origin from where they got their title is said to be from the Buddhist text. And Chandragupta, who belongs to Sakya clan, comes from the region where there is full of peacocks. Region full of peacocks. And from this more came the Maurya. Okay. तो चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में कुछ देख लेते हैं. He was the founder of this Mauryan Empire and founded it in 322 BC
or believed to be founded in 322 BC. And the Seleucus Nicator, we जो प्रोविंस छोड़ के चला गया था एलेक्जेंडर, जिसको वो अपना गवर्नर बना दिया था, सेलुकस निकेटर, ये अपना बेटी का शादी करवाता है फॉर ए रिटर्न ऑफ 500 एलिफेंट. इट इज बिलीव लाइक दैट. So it is not so important from the point of view of exam, and he has a large territory. And his territory comprises of the whole, जो आप हिंदू कुश माउंटेन है, हिंदू कुश माउंटेन से लेके नेपाल से लेके some part of बांग्लादेश, ये पूरा सिंध पूरा एरिया, और some part of ईरान, ये पूरा एरिया इसका अंदर था. बट इन द लेटर पीरियड, हमने इसको बताया था, इन द लेटर period of his life, भाद्रबहु का अंदर में he embraced Jainism. He converted to Jaina or Jainism, and he performed a ritual called salakhana, where they वो रिचुअल में क्या होता है, आप फास्टिंग करते हैं, पूरा मरने तक आप फास्टिंग करते हैं, उसमें starved till death, starved himself to death, and this ritual is called Salekhana. Okay. Now the successor of Chandragupta was Bindusara. वन मोर थिंग, चंद्रगुप्ता को जो ग्रीक है, ग्रीक यूज टू कॉल हिम सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेगास्थेनस हाउ आई माई, ये सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको कैसे हम भूल गए. मेगास्थेनस द ग्रीक एम्बेसडर visited his court. Megasthenes visited his court. Okay, this is also important. In fact, this is the most important part of Chandragupta Maurya. Now Bindusara is called Amritochastes in Greek, even though I might not be pronouncing it right, I don't know. Spelling is like this.
and in Sanskrit he is known as Amritagatha. और जो there was one more person who visited his court was Deimachus. It's the Greek ambassador. Who visited his court. And this Bindusara, he made Asoka the governor of Ujjain. And Asoka helped him extend his kingdom in the peninsular region. Okay, Asoka helped him to extend further to peninsular region. So here we see that the area which was under his father, that it was Chandragupta Maurya, it was further extended. And when Asoka comes in throne, it is further extended in the south also. साउथ में और एक्सटेंड करता है, और नॉर्थ वेस्ट में भी बहुत सारा जगह पे फिर एक्सटेंड होता है. After Bindusara comes Asoka the Great. Asoka is said to live 268 to 232 BC. And he is also called देवानाम पिया और पियादासी. Which means that beloved of God. And it is believed that he killed 99 of his brother to get the throne. It might be wrong. It is I think it was mostly speculated, but it is written that he has killed 99 brothers to get to this throne. And one aspect of his life that disturbed him and turned him into an ascetic, that was the Kalinga War. And in 261 BC there was a Kalinga War. In the 9th year of his rule. तो ये कलिंगा वार में इसने जो एट्रोसिटीज देखा, यहाँ पे बहुत सारा जो ये था, फाइट का वजह से बहुत सारा लोग इंजर्ड हुआ, मरा. तो वो
उसका जो दृश्य है उसको देख के जो अशोका है उसका मन में बहुत ही गॉट रियली डिस्टर्ब आफ्टर दैट, एंड उसका बाद से ही एम्ब्रेस बुद्धिज्म अंदर उपगुप्ता. बुद्धिज्म अंडर उपगुप्ता. And from this period he was called as Dharmashoka. Dharmashoka. That means the pious Ashoka or holy Ashoka. Pious means holy Ashoka. तो यहाँ से बोलने लग गया जब ये बुद्धिज्म जब से ये अपना लिया, और उसका बाद से जो वो धर्म का प्रचार करता था, इट वाज कॉल्ड एज धर्मघोषा. ठीक है. तो पहले जो वार कन्क्वेस्ट था उसको क्या बोलता था? भेरी घोषा. नाउ द धर्म का जो प्रचार करेगा डेट इज कॉल्ड द धर्मघोषा. मतलब जो कन्क्वेस्ट करेगा थ्रू धम्मा, नॉट वार. ठीक है. नाउ his way to conduct was that he will spread the dhamma, conquest through dhamma, and not war. And this type of conquest was known as Dhamma Gosha. And the war conquest, what he used to do was known as Veri Gosha. And Ashoka is believed to be that he was a very tolerant king. और यहाँ पे जो है सब टाइप का बिलीफ यहाँ पे Ashoka was very tolerant about all the religions, other religions also. He was a very tolerant king. उसका बाद अशोका का इंस्क्रिप्शन है. There are 3 types of inscription. One is pillar edict and rock edict are 2 in numbers, that is major and minor. तो वहाँ पे different types of things are given. Okay, let's see that. Ashokan inscription. There are, first is pillar edict. Numbers are not so important. Okay, these numbers are not so important. There are 7 pillars. And most of them depicts the symbols of Buddhism. Okay, symbols of Buddhism like animals,
like elephants, lion, lotus, wheel. It is E, okay, E, double E L, wheel. Minor rock edicts. Let's see first the major rock edict. 14 in numbers. And here the government policy and the policy of Dhamma is given. Minor rock edict, 15 in number. Here the personal history of Ashoka is written. And it was first deciphered by James Pritzker in 1837. तो ये जो पिलर्स है, ये पिलर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री में इसको मिलता है. ये जितना पिलर्स है माइनर हो, ये लेकिन सेम टाइप का, जैसे कि मेजर रॉक एडिक्ट है तो वो थोड़ा बड़ा साइज में होगा. एंड उसमें लिखा वाला चीज़ भी सेम सिमिलर होगा. लाइक दैट जो माइनर एडिक्ट होगा उसमें पर्सनल हिस्ट्री होगा. और ये सब को डेसिफर्ड किया था बाय जेम्स प्रिंसेप. तो इसमें ही जो लैंग्वेज हमने बोला था कि जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो एडिक्ट थे, रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट, जो भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है वहाँ पे खारोस्ती स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है. और खारोस्ती स्क्रिप्ट कहाँ से आया है? पर्शिया से आया. तो दैट वे वी कैन सी द यूज़ ऑफ दिस लैंग्वेज. तो आज का कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में भी बहुत सारा वर्ड्स है दैट हैज़ कम फ्रॉम दिस पर्शिया. लैंग्वेज of this all edicts were written in Prakrit. And the script was Brahmi script. Art and architecture. Most important is the most important is the national emblem of our country, the four lion. Even though we can see only the three lions, that is the standing lion, and we see the two lion from their side view. तो पीछे में भी ऐसा ही एक लायन है. ठीक है, जो नेशनल एम्ब्लेम है ये कहाँ पे है? द लायन कैपिटल
द लायन कैपिटल, व्हेन आई एम टॉकिंग दिस कैपिटल, द वर्ड कैपिटल, तो ये कैपिटल जो राजधानी वाला कैपिटल नहीं है, ठीक है, जो वो बनावट है, जैसे मेडल बोलता है, मेडल क्या है, एक कॉइन जैसा है, ऐसे ही टाइप का कैपिटल, मतलब एक जो स्ट्रक्चर है ये कैपिटल जो, ठीक है, इट इज एन स्ट्रक्चर, नॉट एज ए हेडक्वार्टर और कैपिटल जो राजधानी टाइप का कैपिटल नहीं, ठीक है, इट इज एट सारनाथ। इवन दो ये सारनाथ में है, द सेम टाइप ऑफ कैपिटल कुड बी फाउंड इन अदर प्लेसेस ऑल्सो, बट हम लोग का जो नेशनल एम्ब्लेम है उसका जो इसका जो लायन लिया गया है ये सारनाथ से लिया है, लेकिन जिस सिमिलर टाइप ऑफ हम लोग को ये जो स्ट्रक्चर मिलता है, जो कैपिटल मिलता है, that could be found in other places also, like सांची में भी है, पाटलिपुत्रा एंड उज्जैन, ये सब में भी देखने को मिलता है, बट what government of India has incorporated is from this lion capital of सारनाथ। और इसका यहाँ पे क्या क्या है, हम लोग का नेशनल एम्ब्लेम में क्या क्या चीज़ है, there is a chakra beneath the lion, there is a chakra, and beside the chakra there are 4 animals, one is horse, bull, elephant and lion. It might come in exam. And this is the important thing, and most of the things, and one more thing maybe it might come, is the pottery. The type of pottery is NPPW, that is not black polished ware. तो ये जो पोट्री होता है, पोट्री पहले देख के लगता था फिल्म्स में, जब फाइटिंग करता है, स्पेशली इन जैकी चैन फिल्म्स यू माइट हैव सीन, जो पोट्री है उसको बहुत बचाने की कोशिश करता है, बिकॉज इट लाइज इट हैज़ ए सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू इट। वहाँ से टाइम का जो उस समय में जो कल्चर था उसका, वो पोट्री से पता चलता है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री इन डिफरेंट पीरियड्स, तो उसमें से ही ये एक नॉट ब्लैक पॉलिश वेयर है। Okay, now let's see the literatures. This is important. First one, that is Megasthenes. He wrote Indica, and we have told already, we have seen already, the Megasthenes has come in whose court? तो ये मेगास्थेनेस ने कौन सा बुक लिखा है? इंडिका, इसको याद रखिए। मुद्रा राक्षसा, is
was written by Vishakha Datta. Third, Jataka. Jataka are the moral stories, ठीक है, जो यहाँ पे moral stories of Buddhas are taught here. तो अगर आपने बचपन में कॉमिक्स पढ़ा हो, सो मोस्ट जो टिंकल कॉमिक्स था, टिंकल कॉमिक्स में भी इसमें बहुत सारा चीज़ देता था फ्रॉम द जटाका टेल्स. और इसका जो अमर चित्र कथा है, अमर चित्र कथा एक कॉमिक्स आता था, द सेम पब्लिशर ऑफ द टिंकल. तो अमर चित्र कथा में भी ये छपता था जटाका, एंड यू कैन फाइंड द जटाका टेल्स नाउ ऑल्सो. तो यहाँ पे जो मॉरल स्टोरी टोल्ड बाय द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, ठीक है. तो फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा जो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज लिखता था ऑफ बुद्धा's पास्ट लाइफ. दीपावंसा and Mahavamsa. It was written by Ashoka. Here it is been given the अशोका का जो उसका मिशन था, मिशन टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म. एफर्ट टू propagate Buddhism in श्रीलंका. श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन. हाँ, सिलोन. तो सिलोन अगर देता है तो आपको श्रीलंका ये सेम है. This Megasthenes book is important, and another one we have discussed earlier, Arthashastra. Okay, Arthashastra has been asked many times in Arunachal exams. Kautilya, and instead of giving the name Kautilya, if it gives the name of Chanakya or Vishnugupta, it is the same person. Parishta Parvan. Parvan is written by Hemachandra. These are all the aspects of our Mauryan kingdom, and Asoka was the last important emperor or king. After that the इसका जो डाउनफॉल है ये शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द वीक रूलर्स. तो उसका इतना डिटेल्स में आपको जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो अशोका का उसका बाद अशोका का जो बेटा होता है, मतलब जो उसका सक्सेसर्स होता है, ये बांट देता है. ये पूरा जो किंगडम है इसको दो भाग में बांट देता है. वन इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया एंड अनदर वन इज़ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वो ऐसे बांट देने के बाद जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फिर से डिफरेंट
different people, they attack the northwest part of India. और ऐसे ऐसे होके वहाँ से अटैक, कंटिन्यूस अटैक हो के यहाँ पे इसका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वो पूरा चला जाता है टू दैट डिफरेंट पार्ट्स, टू दैट स्टेट्स। लाइक वहाँ पे बहुत सारा था, लाइक छोटा मोटा किंगडम, लाइक सुंगा डायनेस्टी हो गया, सुंगा और कन्बा, और सत्तावाहना क्या था, सत्तावाहना भी यहाँ पे आ गया था। सत्तावाहना क्या है, जो साउदर्न स्टेट था, डेट वॉज द सत्तावाहनास। So if we look at the downfall of Mauryan Empire, तो फर्स्ट था वीक एम्पायर्स और बांट दिया उसको दो भाग में। एंड यहाँ पे बहुत सारे जो ब्राह्मण रूल स्टेट है, ब्राह्मण रूल स्टेट ये वापस आ गया इन पावर। तो जो भी हम लोग देख रहा था अभी तक, एम्पायर लोग जो भी खड़ा हो रहा था, दे वेर मोस्टली ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये सब फॉलोअर्स था ज़्यादातर। तो अभी क्या देखता है कि यहाँ पे जो हिंदू रूलर्स था, तो उसका आवागमन हम लोग देखता है, मतलब उसका वो लोग आने वाला हम लोग देखता है इन द लाइमलाइट। ये लोग आ जाता है हिंदू रूलर्स। और यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक मेन रीज़न है, क्योंकि जो आर्मी मेंटेन करता था, तो उसमें बहुत सारा जो स्टेट का एक्सचेकर है, उसका पैसा है स्टेट का, वो आर्मी को मेंटेन करने में चला जाता था। एंड वन मोर थिंग इज दैट अशोका जो उसका धर्म को फैला रहा था, द बुद्धिज्म, उसमें भी बहुत सारा पैसा उसने खर्चा किया। जो मॉन्क्स को पैसा ग्रांट्स देना हो, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो रॉयल एक्सचेकर है, रॉयल ट्रेजरी है, उसमें इफेक्ट किया। तो वन ऑफ द रीज़न ये भी है। और जो हम लोग पहले वाला स्टेज में देखा था कि जो लेटर बेटिक एज में, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ आयरन होता है, इन महाजनपदा कैसे महाजनपदा बन गया, क्योंकि वहाँ पे जो गंगा वैली है, गंगा वैली में क्या है, डिस्कवरी ऑफ आयरन हुआ था। डिस्कवरी ऑफ आयरन गंगा वैली में हुआ था। तो इस समय में क्या हो गया, जो डेक्कन रीजन है, डेक्कन रीजन ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट द आयरन, एंड वहाँ पे भी आयरन डिस्कवर हुआ, और स्मेल्टिंग जो वो लोग का टेक्नोलॉजी था वो लोग डेवलप कर दिया। तो आयरन बाद में क्या हुआ, डेक्कन में भी मिलने लग गया। तो जो डेक्कन पार्ट में जो किंगडम्स बन रहा था, वो सब भी और स्ट्रेंथेंड हो गया। एंड वी हैव टॉक्ड ऑलरेडी, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ से बहुत सारा किंगडम्स, दे वर मोस्टली कॉल्ड एज द ग्रीक, ठीक है, ग्रीक और साकास। तो ये भी बाद में ये लोग को अटैक करने लग गया। तो ये सब पूरा एमलगेट होके ये पूरा रीजन बना है फॉर द डाउनफॉल ऑफ मौर्यंस। तो ये था आपका मौर्यंस। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो अभी हम लोग का इंडो बैक्टीरियन है, बैक्टीरिया एक जगह है नियर ऑक्सस रिवर, यहाँ से जो किंगडम्स था वो कौन कौन सा किंगडम है, और छोटा मोटा जो किंगडम जो प्रोमिनेंस में आया है, वो सब को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ओके, इतना हो जाएगा आज के लिए।